recording. Chalo. Start with the first journal entry. Can you tell me the first journal entry, Janvi? आवाज नहीं आ रहा है. नीति, first journal entry. रिजर्व फंड वाला. Reserves account debit to पार्टनर्स कैपिटल. डाटे आपटे करवे कैपिटल. बराबर है. Reserves account debit to डाटे आपटे करवे cap 1510.5 being reserves distributed to partners in PSR. 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 Then second entry, opening balance का तो कोई entry नहीं होगा. So let's go to the big journal entry. Okay. Yash Desai, can you tell me the next entry? Realization to debtors, investment, stock, furniture. Realization to debtor to investment to stock to furniture. Okay. Big journal entry, entry number 2. Realization to debtors to investments to stock to furniture. Realization to debtors to investments to stock to furniture being sundry assets transferred to realization. 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 Namra, can you tell me entry number 3? Yes, a creditors account debit to realization. Creditors account debit to realization. 1,10,000 being sundry liabilities transferred to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Entry number 3. Sundry creditors to realization. Narration में being sundry liabilities transferred to realization. Vanshi, can you tell me entry number 4? Vanshi Kamdar. Yes, sir. Bank to realization. Very good. Bank to realization. Bank account debit to realization. Narration क्या होगा? Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Bank to realization 1,18,000. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Khwahish, can you tell me entry number 5? Date capital to realization. Very good. Date cap to realization. Date cap to realization being furniture taken over by Date. Date cap to realization being furniture taken over by Date. Date cap to realization being furniture taken over by Date. Ria, can you tell me entry number 6? Realization to bank. Perfect. Realization to bank after assets go to liabilities. Realization to bank 1,07,400 being sundry liabilities paid off. 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 Is that clear? Manan Mehta, can you tell me entry number 7? Very important one. Realization to date cap. Realization to date cap. इसको मत भूलना, सबसे important अलग entry यही था. Realization to date capital 300. Realization to date capital 300. Realization to date capital 300. Narration क्या लिखोगे? Being commission payable to Date. Being commission payable to Date. Being commission payable to Date. Realization to Date capital 300 being commission payable to Date. That's 7th one. Isha, can you tell me the 8th entry? Yes, sir.
Date capital, Karve capital to realization. Date apte karve to realization. Date cap, apte cap, karve cap to realization. Being loss on realization transferred to partners capital in PSR. Being loss on realization transferred to partners capital in PSR. Being loss on realization transferred to partners capital in PSR. That was your entry number 8. That was your entry number 8. Devanshi, can you tell me entry number 9? After profit or loss, what's your next entry? Devanshi, आवाज नहीं आ रहा, unmute and talk. Ayushi, entry number 9. Bank to Karve capital. Bank to Karve capital. Bank to Karve capital being part payment received from Karve. 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 Okay, being part payment. जो 1900 वो लाया ना इंसॉल्वेंसी के बाद घर से टुकड़ा टुकड़ा 25 पैसा ना रुपी वो लाया, वो उसका एंट्री है बैंक टू कार्वे कैपिटल. ओके, पार्ट पेमेंट रिसीव फ्रॉम कार्वे. है ना 17? कैन यू टेल मी एंट्री नंबर 10? Date cap, apte cap to Karve cap. Perfect. Date cap, apte cap to Karve cap. That is deficiency, being deficiency of insolvent partner shared by solvent partners in PSR. Being deficiency of insolvent partner shared by solvent partners in PSR. Date apte to Karve. Being deficiency of insolvent partners shared by solvent partners in PSR. Okay, being deficiency of insolvent partners shared by solvent partners in PSR. And the last entry, Devisi, can you tell me the last entry? Date capital, apte capital to bank. Perfect. Date cap, apte cap to bank. 11,030,27820. 11,030,27820 being surplus in partners capital paid off on final settlement. Being surplus in partners capitals paid off on final settlement. Being surplus in partners capitals paid off on final settlement. Being surplus in partners capitals paid off on final settlement. Okay, got it, all of you? Comfortable? Any doubts? Okay, totally 11 entries you should have. Next problem. Draw for some number. सर आज बस करो ना, आज आप वैसे भी बीमार लग रहे हो तो आप सो जाओ. इतना कुछ बीमार नहीं हो यार, थोड़ा सर्दी हो गया. चलो ना, तो सर रेस्ट ले लो तो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा हम लोग करेंगे. अभी बराबर है. चलो नेक्स्ट सम नंबर 21. सम नंबर 21 खुद से ट्राई करना है आप लोगों को. सम नंबर 21. ओके, एकदम ध्यान से देखना. सम नंबर 21. कुमार, केवल एंड कंचन. कुमार, केवल एंड कंचन. सम नंबर 21. एकदम ध्यान से. कौन इंसॉल्वेंट हुआ है बराबर से चेक करना. ओके, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है. सम नंबर 21. कुमार, केवल एंड कंचन. डू इट ऑन योर ओन. कम ऑन. 21. इसमें जर्नल है. 21 का जर्नल होमवर्क है. बाद भी एग्जाम कराने वाले हो. यस. फर्स्ट सम. कम ऑन. बोर्ड का टाइमिंग अगेन. ओके, इफ इट इज आस्क्ड, इफ दे हैव आस्क्ड ओनली लेजर देन इट इज मैक्स 15 to 20 minutes. If they have asked only journal, then
लेजर रफ में रहेगा, जर्नल फेयर में रहेगा, एंड 20 to 25 minutes max. 15 to 20 minutes for ledger, and with journal है तो 20 to 25 minutes. This sum you try to get it in 15 to 20 minutes. 840 तक ट्राई करो, 840 तक होना चाहिए. First problem, Kumar Keval and Kanchan. Now all the sums are of insolvency only. अभी single partner insolvency चल रहा है, फिर double partner insolvency आएगा, फिर all partner insolvency आएगा. सब insolvency का ही sums है. और यही होता है प्रैक्टिकली. अगर आपको याद होगा शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया था, the main reason for dissolution of a business is insolvency and losses. बाकी सब तो theoretical reasons हैं. प्रैक्टिकली जितने बिजनेस बंद होते हैं सब insolvency और losses के वजह से होते हैं. Today I'm going to share a video. प्लीज देखना उसको. YouTube का वीडियो लिंक आई विल बी शेयरिंग. वो प्रैक्टिकल केस स्टडी है एक कंपनी के बैंक्रप्सी की. ओके, कंपनी जब इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या हुआ, किसको कितना पैसा मिला और कैसे रिवाइव हुआ. वहाँ पे वो रिवाइव भी हो रहा है थोड़ा बहुत. अगर बंद हो गया तो कुछ नहीं, पैसा डूब जाता है डेफिशिएंसी में जाके. तो प्रैक्टिकल केस स्टडी है, आपको सेंड कर रहा हूँ, देखना ध्यान से. 9-10 मिनट का वीडियो है खाली, बट वेरी मच इंफॉर्मेटिव. ओके सर, या इसमें डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल टुगेदर रियलाइज, तो दोनों का हाफ हाफ लेना है ना? नहीं भाई, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल टुगेदर रियलाइज और उसको 10,000 एक साथ ही लिखना है ना, एक एक अकाउंट के जैसा. साथ. हाँ, एक अकाउंट मतलब वो अभी अकाउंट तो बंद हो चुके हैं. अभी एंट्रीज बैंक टू रियलाइजेशन में डेटर एंड बीआर दोनों मिला के 10 ईच नहीं है, दोनों मिला के 10, टोटल 10,000 आया. तो सीधा लिख देने का बाय बैंक, नीचे डेटर एंड बीआर 10,000 इनर कॉलम, डेटर एंड बीआर 10,000 इनर कॉलम, दोनों मिला के 10 आया हाथ में. टुगेदर रियलाइज 10. उसमें कितना इंडिविजुअल अपने को मालूम नहीं है, हाफ हाफ मत करना.
सर या वो जो एसेट टेकन है वो भी साथ में दिया, तो उसका भी 16,000 एक साथ लेना है। machinery was taken over, furniture and building, yes, furniture and building together साथ at 16,000 furniture and एंट्री तो तुम्हारा बाय केवल कैपिटल है, उसके अंदर फर्नीचर एंड बिल्डिंग 16,000, दोनों का मिला के 16,000, इंडिविजुअली नहीं पता है, दोनों का मिला के 16,000, दोनों साथ। ईच दिया है तो ईच लेने का, ईच ईच कुछ नहीं दिया है। सर इसमें कंचन का कुछ शेयर नहीं दे तो पूरा ले लेने का ना, मतलब पूरा उसने बैंक के पे कर दिए। कंचन became insolvent and no separate asset, वो मतलब बाय बैंक वाला एंट्री नहीं आएगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का आएगा। सीधा सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, 1 रुपया नहीं ला पाई, अच्छा, कुछ पैसा नहीं ला पाई। अब में कैश है तो कैश यूज करना है, बैंक यूज मत कर देना।
इधर भी बैंक नहीं आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट। सर नरेशन नहीं लिखे तो चलेगा? नरेशन लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, डोंट स्किप नरेशन। तो सर बाद में होमवर्क में सम भी बेचना है कि सिर्फ नरेशन चलेगा? नहीं नहीं, सिर्फ जर्नल तुम चलेगा खाली ना? जर्नल ही चाहिए ना, लेजर तो अभी कर रहे हो। सर 89,500 है। सर 89,500 आ रहा है। एक सेकंड, $49,900 आया ये। हाँ सर।
सर वो जो टेक ओवर कर रहे हैं उसका एंट्री हम लोग क्लब कर सकते हैं, हाँ, मतलब उसका क्लब कर कुमार सकते हैं। कैप, केवल कैप टू रियलाइजेशन। यस यस यस। $950 और 1950 आया डेफिसिट। हाँ सर। ना पैसा, दोनों को लाना पड़ा, लेकिन ये दोनों ले आ पाएंगे, ये दोनों इंसॉल्वेंट नहीं है। ओके, कुमार एंड केवल आर स्टिल सॉल्वेंट, इनको टेंशन नहीं है कुछ, ये लोग के पास घर पे बहुत पैसा है। कंचन बेचारी गई। 16,500 पे टैली हो रहा है, चेक कर लो। योर सॉल्यूशन। सर नेक्स्ट सम कौन सा है? वेट आई टेल यू। आराम से देखो, सबका हुआ, पहले आंसर वांसर सब चेक कर लो। जमा करने के लिए खुद से आया। डेबिट माइनस क्रेडिट इंसॉल्वेंसी पार्ट, एनीवन फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और नॉट अंडरस्टूड येट, टेल। इंसॉल्वेंसी पार्ट क्लियर है सबको? टेकन ओवर की एंट्री कंपाइल चलेगा ना दोनों का, दोनों का पार्टनर्स का? हाँ ये चलेगा रहा, मतलब क्या बोल रहा है? टेक ओवर एंट्री टेक ओवर कुमार केवल में तो चलेगा हाँ, ना, क्लब किया तो? क्लब किया तो हाँ चलेगा। यस, कुमार कैप केवल का जर्नल में 10 एंट्री आएगा ना, वो क्लब नहीं किया है। क्लब नहीं किया है या क्लब किया है, दोनों बता रहा हूँ मैं, देख लो। पहले लेजर बताओ मेरे को, लेजर हो गया सबका, फिर आई गो टू जर्नल। जर्नल मार्किंग्स लेना है, जर्नल इज फॉर होमवर्क, जर्नल का खाली मार्किंग्स ले लो। लेजर में किसी को डाउट ये मिला? 1950 950 फाइनल डेफिसिट। डेबिट माइनस क्रेडिट करके पहले चेक करने का कितना पैसा लेना बाकी है, बराबर है। उसमें से जो लाया वो ठीक है, जो नहीं लाया वो डेफिशिएंसी। तो इसमें कुछ भी नहीं लाया कंचन ने, वो बाय बैंक वाला एंट्री आएगा ही नहीं, बैंक टू कंचन आएगी ही नहीं, ये कुछ भी पैसा नहीं आया कंचन से। इज दैट क्लियर? कुछ रिसीव ही नहीं किया तो पूरा का पूरा डेफिसिट है आपका। डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द अदर टू पार्ट PSR। ओके, तो जर्नल एंट्री का नंबरिंग दे दो, ध्यान से देखते जाओ। एंट्री नंबर 1, ओके, एंट्री नंबर 1 विल बी फॉर रिजर्व्स, रिजर्व फंड टू कुमार केवल कंचन डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशंस के साथ चाहिए, जर्नल इज फॉर होमवर्क। कुमार केवल कंचन, reserve to Kumar Keval Kanchan being reserve fund distributed to partners in PSR. Entry number 2 is a big journal entry, बहुत ही बड़ी है यहाँ पे। Realization to building to machine to furniture to stock to debtors to BR to investments. Okay, being sundry assets transferred to realization. Entry number 3, creditors bills payable to realization being sundry liabilities transferred to realization. Entry number 4, cash to realization being sundry assets realized. Entry number 5 can be clubbed, Kumar Keval to Kanchan, अलग अलग किया तो भी चलेगा, क्लब किया तो भी चलेगा। Kumar Keval to Kanchan being furniture and building taken over by Kumar and machinery taken over by Keval. Furniture and building taken over by Kumar and machinery taken over by Keval. Entry number is realization to cash being sundry liabilities paid off. Entry number 7 is Kumar Keval Kanchan to realization being loss distributed to partners capital. Entry number 8 is Kumar Keval to Kanchan, deficiency of insolvent partner borne by solvent partner in PSR.
And entry number 9 is cash to Kumar to Cable. Deficit in partners' capital received on final settlement. Deficit in partners' capitals received on final settlement. Total 9 entries. If you have clubbed the 2 entries of taken over, अगर टेक ओवर का क्लब नहीं किया है तो 10 एंट्री, क्लब किया है तो 9 एंट्री मिलेगा, नहीं किया तो 10 एंट्री मिलेगा. That's for homework. Now I want you all to try the last problem, that is sum number tell you that is sum number sum number 18. सम नंबर 18 खुद से ट्राई करना है. लास्ट सम नंबर 18 में जर्नल नहीं है, खाली लेजर है. ओनली लेजर. सम नंबर 18 लास्ट सम. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स हार्ड वर्कर्स एंड कंपनी. हार्ड, सॉफ्ट एंड हॉट. ओके, सम नंबर 18. कम ऑन. एटीन्थ सम, लास्ट सम फॉर द डे. Only ledger, no journal. के घर का कौवा सुन नम्र दोष पे चले जाओ यार. बाकी वो अभी उठा, आप हम लोग को जल्दी उठा रहे हो फालतू. चलो चलो, 7:30 कोई जल्दी नहीं होता. और वो आपके लिए, हमारे लिए जल्दी होता है. हाँ, हमारे लिए तो 10 बजे भी जल्दी हो जाए. मुझे एक बात बताओ, कॉलेज में सभी लेक्चर्स हो रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ही हो रहे हैं और कोई स्किप कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? सब लेक्चर्स हो रहे हैं, पर लेक्चर्स 3 दिन से कट हो रहे हैं. कट हो रहे हैं एज इन? हमारे क्लास में कल 2 लेक्चर कट हुआ और उसके 2 दिन पहले 2 लेक्चर्स कट हुए. एक अच्छा, नहीं, मतलब हमारे क्लास में एक भी हमारे क्लास लेक्चर में कट सब नहीं हो हुआ. रहा है सर. सब हो रहे हैं. क्लास में हुआ, बाकी किसी क्लास में नहीं हुआ. सिर्फ पहले 3 लेते थे, अभी 4 लेने लगे. 45 मिनट. टाइमिंग सिर्फ चेंज कर दिया, 5-5 मिनट का गैप कर दिया. अभी सर 5 मिनट बढ़ा दिया. अच्छा, 340 का 345 वही कर दिया. तो 345 कर दिया. करो करो, बढ़िया है. एंड दूसरा मेरे को पूछना था, इसमें सोमैया केजे में चालू है. सोमैया में लेक्चर्स? हाँ सर. केजे में भी चालू है. व्हाट आर द टाइमिंग? सेम 12 to 3. हाँ. रिकॉर्डेड है सर, क्या टाइमिंग? अच्छा, रिकॉर्डेड लिंक दे देते हैं. बट एसके में दे आर टेकिंग लाइव, राइट? हाँ हाँ, सब लाइव. लाइव है. केजे में दे आर गिविंग रिकॉर्डेड. एचआर चालू ही नहीं किया. व्हाट अबाउट पोदार? 12 to 3 ऑल लेक्चर्स आर हैपनिंग. यस. और सर कुछ बंक मारने को मत बोलना, वोकेशनल वालों को वीडियो ऑन रख के बैठ. नहीं बाबा, मन काम आएगा. मेरा तो सवेरे खत्म, सवेरे हो जाता है. पोर्शन का पता चला ना, 4 चैप्टर्स हैव बीन ओमिटेड. रिटायरमेंट गया है तुम्हारा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रूल हो गया, और 2 नया टॉपिक जो पर वो लोग ने उसमें पेज नंबर ही दिया है, तो पूरा चैप्टर कैसे कट हुआ? इसमें क्वेश्चन पेपर में रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा, वैसा है. वही सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए स्टडी है. हाँ, तो पूछेंगे वो लोग पेपर में. हाँ बापा, करना तो तो पड़ेगा. हम लोग ने तो किया ही है ना. हम लोग ने कहाँ तो छोड़ा? सर वो ऑप्शन में आने वाला है रिटायरमेंट. ऑप्शन में आएगा. वो लोग ने सेल्फ स्टडी करके डाला हुआ है, बट कॉलेज नहीं पढ़ाने वाला है तुमको, ऐसा है सर. पर वो लोग ने नीचे सेल्फ स्टडी करके लिखा है कि सेल्फ स्टडी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको करना है. पूछेंगे, ऑप्शन में है. सर मतलब कैसा दिया उन्होंने ना बोला, लेकिन पेपर पैटर्न में फिर से दिया है कि पूछेगा. हाँ है, पूछना. वैसे तो अरे ना, ऐसा लिखा ही नहीं है किधर, डायरेक्ट पेपर पैटर्न दिया है. हाँ, वो लोग ने ना, कॉलेज लेट स्टार्ट हुआ है ना, तो फॉर असिस्टिंग देम दे हैव गिवन दैट. तो सर तो स्टूडेंट का क्या फॉल्ट है? जो क्लास नहीं करते वो लोग कैसे पढ़ेंगे? उनका ही मेन इश्यू है.
लोग क्लास नहीं कर रहे, वो सर लोग मतलब इन शॉर्ट कुछ रिडक्शन तो किया ही नहीं है ना, हाँ सब सब कुछ है। कुछ नहीं किया अरे है। किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी बनाया नहीं किया रिडक्शन। एसएससी बोर्ड ने वो बनाया। लोग को मालूम है कॉलेज के सर ऊपर, चॉकलेट दे के छोड़ दिया है बस। कॉलेज के ऊपर प्रेशर है, क्लासेस आर गोइंग टू डू दैट. In fact, I'm planning to take that vertical statement का chapter if time permits. Okay? Vertical chapter, vertical statement और computerized account. Computerized accounting तो ठीक है, फालतू chapter था. Tally तुमको practically सीखने का है, उसका theory का कुछ खास use नहीं है. But vertical statement वाला analysis वाला chapter was good one. इस साल introduce हुआ था. So if time permits, I'll take that chapter. But तुमको अभी pattern कैसा होगा? You have objectives. You have admission and retirement का option. So prepare admission properly. Okay? Retirement भी करेंगे, करना ही है, हम लोग तो कुछ छोड़ने वाले नहीं है. Retirement भी करना है, admission retirement में option है तुमको, और इसमें option है अपना dissolution and bills of exchange. Dissolution and bills of exchange में option है. Okay? दोनों कर लेना perfectly. नसीब हुआ शायद ऐसा, क्योंकि वो लोग ने सेल्फ स्टडी में डाला है, तो कहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन शायद इजी भी निकल सकता है, रिटायरमेंट का भी इजी निकल सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में डाला हुआ क्वेश्चन है. ओके, तो यू हैव दैट प्लस पॉइंट. सर तो दोनों में से एक ही सर तो 5 मार्क का प्रोफॉर्मा गया, वो ऑब्जेक्टिव्स में आता है. ऑब्जेक्टिव सर दोनों में से कोई भी वो एक तो आएगा नहीं ना फिर. आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, अरे ऑप्शन पर है. अरे अच्छा वैसे हाँ हाँ ऑप्शन में पैटर्न चेंज नहीं किया वो लोग. तुम यू आर ऑन द एडवांटेजेस पॉइंट. यू इफ यू डू एवरीथिंग, यू हैव चॉइसेस, आराम से आप चूज कर सकते हो जो करना है. एडमिशन या रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेथ या वर्टिकल स्टेटमेंट, उसमें गो फॉर डेथ. ओके, वर्टिकल स्टेटमेंट भी विल बी डूइंग. एंड लास्ट शेयर्स है तुम्हारा, शेयर्स और ये था अपना शेयर्स एंड शेयर्स एंड वर्टिकल था, तो इसका कौन सा डेथ के साथ इट वाज अकाउंटिंग वाला है ना, कंप्यूटर में मतलब. नहीं थियरी वाला नहीं था सर, वो एनालाइज करना था वो वाला. एक 6 और 7 कंपलसरी है तुमको. एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट इज कंपलसरी. ओके, बीच में 2, 3, 4, 5 में तुमको आ रहा है ऑप्शन. जस्ट टेल यू. या डिसोल्यूशन के साथ बीओई है, एडमिशन के साथ रिटायरमेंट है, इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ कंप्यूटर अकाउंटिंग है, और डेथ के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो डेथ के ही अटेम्प्ट करना. एनालिसिस हम लोग करेंगे, बट क्या है कि फर्स्ट ईयर है, तो यू नेवर नो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, और सेल्फ स्टडी में भी डाला हुआ है, तो सेफ साइड के लिए डेथ. ओके, डेथ तो सर परफेक्टली वो करना. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी में क्या पूछेंगे वो लोग, थियरी? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी इज एन ऑप्शन विद शेयर्स. तो शेयर्स हम लोग अच्छे से करने वाले हैं वैसे भी. तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का थियोरी है, थियोरी आप अवॉइड करो तो बेटर है. टैली का थियोरी है वो. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, वो सब दिया हुआ है थियोरी चैप्टर. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज जस्ट थियोरी. शेयर्स विल बी डूइंग परफेक्टली. शेयर्स में कुछ नहीं छोड़ेंगे. एंड वर्टिकल स्टेटमेंट्स भी करेंगे, बट अटेम्प्ट डेथ. फर्स्ट ईयर है, यू नेवर नो द डिफिकल्टी लेवल, एंड सेल्फ स्टडी में भी डाला है, दैट्स व्हाई. बाकी एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट्स इज कंपलसरी. और विच सम? ये भाई 18 सम क्या कर रहा है इतनी देर से? सम नंबर 18 हार्ड वर्कर्स लिमिटेड. सर सिंगल एंट्री निकल गया. सिंगल एंट्री है ही नहीं अभी. लास्ट ईयर किया ना, कितनी बार करना. खाली फुकट का किया. अरे लास्ट ईयर किया बापा. अरे सर आपका जो पीडीएफ है ना उसमें है. हाँ मालूम है, ये लास्ट ईयर का ही दिया हुआ है, इसमें वर्टिकल का भी नहीं है ना नोट्स. बनाने को मिला किधर? जिस दिन क्लास चालू हुआ उस दिन तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आया.
सिलेबस नोट्स कुछ मिला ही नहीं प्रिपरेशन का, तुमको अभी अलग से मिलेगा वापस पीडीएफ ऑप्शनल चैप्टर्स का। सर आप अपने नोट्स देने वाले हो? प्रिंटेड चाहिए तुम लोगों को तो मैं करवा देता हूँ जेरोक्स अरेंज, कलेक्ट खाली करना पड़ेगा। क्योंकि रोहन सर देने वाला है तो हम लोग राजू सर के मतलब वो क्लास में से कलेक्ट कर चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अकाउंट्स भी दे दूं, सब लोग आ जाओगे, खाली कलेक्ट करने हैं। हाँ हाँ तो प्रिंटेड करके दे देता हूँ मैं अकाउंट्स का। सर दे दो ना सर, बहुत अच्छा पड़ेगा। ओके फिर वही दिन पे दे देगा ना, एक साथ ही ले लेंगे। हाँ ये शायद है ना तुमको आगे पीछे होता है थोड़ा, क्योंकि वो जेरोक्स वाले का है ना वांदा है थोड़ा, तो बोलेंगे उसको, कभी म्यूनसिपालिटी का लफड़ा होता है, 2-4 घंटा मिलता है उसको चालू करने को, थोड़ा शायद आगे पीछे हो। वो अपना स्वामी जेरोक्स मालूम है तुम लोग को, रामजी आसर के सामने? हाँ सर। नहीं सर। हाँ रामजी आसर स्कूल नहीं मालूम है क्या? घाटकोपर में रहता है, कौन है ये? सर विद्या विहार। कौन है? घाटकोपर आता ही नहीं है क्या? पाकिस्तान में रहता है। अरे रामजी आसर स्कूल यार, अरे सर वो एमजी रोड पे है ना? हाँ वही एमजी रोड वाला कोविड सेंटर। कोविड सेंटर, हाँ उसको कोविड सेंटर बना दिया है। कोविड सेंटर राइट, रामजी आसर पूछ लेना, बहुत फेमस है। अरे ये पूजा होटल नहीं मालूम है क्या तेरे को? पार्श्व राजीव सर के घर वाली गली। हाँ राजीव सर का सर घर मैं वाला तो है। कुछ बोला ही नहीं। कौन था फिर विद्या विहार वाला? भाविक बोले। अच्छा भाविक, अरे भाविक पूजा होटल मालूम है ना, तो उसका यस सामने सर। ऑपोजिट, बस उसका ऑपोजिट। तो उधर से कलेक्ट कर लेना, ओके। और वर्टिकल स्टेटमेंट्स का तुमको थोड़ा लेट मिलेगा, अभी फिलहाल यही प्रिंटेड कॉपी तुमको मिल जाएगा, जो अपना प्रेजेंट वाला जो टेक्स्ट बुक है ना पीडीएफ फाइल में, तुमको वो पूरा प्रिंटेड आ जाएगा। बाकी सर आप सब कट chapters वाला का कट क्वेश्चन कट वाला टेक्स्ट बुक दोगे ना? नहीं भाई, मेरा नोट्स वाला पूरा एवरीथिंग इंक्लूडेड, जो अभी तुम लोग सम्स कर रहे हो ना, जो वही पूरा वाला। अपने लिए कुछ कट नहीं है, तुम समझो, वो सेल्फ स्टडी है, मतलब तुम लोग प्रिपेयर तो करो, एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा तो बेटर ही है ना तुम लोगों के लिए। रिटायरमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर हो गया। हो गया। अच्छा, शुड आई सॉल्व इट? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन द सम? तो आई विल सॉल्व इट। सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको ग्रुप पे, इधर चाहिए किसी को शुड आई सॉल्व तो बोलो मेरे को। किसी को आंसर नहीं आ रहा या कोई डाउट? सर यस या वो से साहिल। यस साहिल। सर वो अनअकाउंटेड लायबिलिटी के लिए क्या नाम आएगा लायबिलिटीज पेड ऑफ में? अनअकाउंटेड अनरिकॉर्डेड। Unaccounted मतलब unrecorded liability. Directly you can write unrecorded liability in the liability. Those things which we write, they are just piece of information. Your entry is realization to bank. Your entry is realization to bank. Bye sir. Wait, hey bhai. Bolo, any doubt? Tell me the answers. Tell me the answers. 29,400 पे टैली होता है। जस्ट अ सेकेंड, कौन सा किया तुमने अभी? सम नंबर 18। मेरे को बोलो पहले, रियलाइजेशन में क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? लॉस। प्रॉफिट लॉस। रियलाइजेशन लॉस कितने का आया? रियलाइजेशन लॉस शायद 9,000 है। शायद 9,000 बंद कर दिया ना सर। हाँ 9,000 है। 9,200 रॉन्ग है मतलब। सर मुझे 9,000 आया और मेरा 9,000। ध्वनि तुम्हारा रॉन्ग है मतलब। चेक करने दो। बोलो, चेक हाँ करो सर बराबर से। 9,000 है। 9,000 है सर। टैली कैसे हुआ तो? सर 9,000 है। 9,000 है। व्हाट इज द पीएसआर इक्वल? 1:1:1। तो 3,000 ईच बराबर है। 9,000 है तो इट इज 3,000 ईच
बराबर है। और कौन है हॉट? नाउ who is insolvent? तो I think Hot was declared insolvent and his estate realized 1000. तो वो insolvency वाला नोट देख लो, amount to be received from Hot कितना था? डेबिट माइनस क्रेडिट. How much were we supposed to receive? Debit minus credit. 6,000. 6,000 less Hot brings कितना पैसा लाया? 1000. इसका एंट्री रहेगा बैंक टू हॉट कैपिटल 1000. ओके, बचा 5000. दिस इज नेट डेफिशिएंसी ऑफ हॉट which will be shared by hard and soft in the TSR. So that 2,500 and 2,500 will be your deficiency sharing between hard and soft. Is that clear? इसका एंट्री क्या रहेगा? सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, हार्ड सॉफ्ट टू हॉट. हार्ड सॉफ्ट टू हॉट, दिस इज 2,500, 2,500 and 5,000. Is that clear? सर मेरे को ऐसा नहीं आया, अमाउंट अलग आया तो भी टैली हुआ मेरा. कैसा अलग आया? क्या अलग सर आया? वो 6,000 है ना, वो मेरे को 8,000 आ रहा है. डेबिट माइनस क्रेडिट. हाँ सर डेबिट में क्या 8,000 टोटल है. 8,000 माइनस 2,000 6,000 होगा ना. रिजर्व फंड भी है ना इसलिए. हाँ, रिजर्व फंड भी है. डेबिट माइनस डायरेक्ट 8 कैसा कर सकते हो? डेबिट माइनस क्रेडिट. लास्ट समय भी देखो हमने डेबिट माइनस क्रेडिट किया. सर मेरे को रियलाइजेशन का टोटल ही 44,000 आया. रियलाइजेशन का टोटल 44 आ रहा है. 44 ही है. 44 आ रहा है. तो 44 ही है ना टोटल. हाँ, तो लॉस कितना है? 9 ही है ना. हाँ, तो क्या मिस्टेक है फिर? मिला ये आंसर मिला 2,500 बाकी लोग को. और मेरे को बोलो कैश अकाउंट कितने पे टैली हो रहा है? 29,400. और 17,000 है. क्या 7 लॉस? नहीं सर, सर 9,000 ही है सर. क्रेडिट साइड का अमाउंट बोलना जरा क्रिश फटाफट. सर क्रेडिट साइड का अमाउंट है 8,000, 2,000 एंट्री के साथ. सर अच्छा. आरडीडी भी है ना, आरडीडी 2,000. हाँ तो सर वो गिन के ही बोल रहा हूँ आपको. हाँ बोल स्टार्टिंग से बोल. बाय सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिटर्स 8,000, बाय आरडीडी 2,000, बाय कैश में फिक्स्ड एसेट्स 9,000, डेटर्स 8,000, स्टॉक 6,400. वो तीन का टोटल 23,400. बाय हार्ड कैपिटल बिल्स रिसीवेबल 1,600. हो गया. बस चेक किया सबने. क्या था मिस्टेक? समझ आया? क्या था मिस्टेक यशवी का? पटेल. अरे सर मैंने फिक्स्ड एसेट 1,000 ले लिया था. आई शाबाश. 10% कम वैल्यू पे रियलाइज हुआ है. 9,000 रियलाइज हुआ है. स्टॉक एट 80%, मतलब स्टॉक का 80% रियलाइज हुआ है. 6,400. बोलो. एनीवन नॉट गेटिंग द आंसर स्टिल? इसमें जर्नल नहीं था, इसमें खाली लेजर ही था. इंसॉल्वेंसी का पार्ट समझ में आ गया. डेबिट माइनस क्रेडिट कितना पैसा लेना था? 6 में से 1 गया, आ गया 1,000 आ गया तो बचा 5 was shared by the other 2 partners in TSR. Okay, now what I was saying is होमवर्क तुमको मिल जाएगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू वेट. आज इंसॉल्वेंसी होमवर्क में खाली जर्नल ही है ना? हाँ, होमवर्क में एक सम का जर्नल तो है ही. टेक्स्ट बुक से इंसॉल्वेंसी का सम आने वाला है, बराबर से देख के करना. कुछ डाउट्स है तो मैसेज करना. अभी कुछ डाउट्स है तो वेट करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस. अदरवाइज यू कैन लीव. सर मंडे को छुट्टी है ना? काय का? रक्षाबंधन. सर कॉलेज में भी छुट्टी दी है. कॉलेज में भी छुट्टी है. घर पे ही बैठे हो. 9 बजे लेक्चर खत्म करके रक्षा बनने वाले. नहीं सर, वो सुबह का मुहूर्त है ना. सुबह 11 बजे. उठते नहीं हो तुम लोग. रोहन सर ने भी छुट्टी दिया. सर ने भी दिया. अभी भाई के लिए तो उठना पड़ेगा ना. सर हम तो कल का भी मांगने वाले थे, ईद का बाद में छोड़ दिए आपको.
कुछ छुट्टी नहीं है। सर रोहन सर ने भी छुट्टी दिया है। अरे उनका 11 बजे, मेरा तो 7:30 से 9 सर हाँ सर प्लीज। अरे तो वही आप समझो सर, उन्होंने 11 बजे सब लोग आते हैं घर पे। हाँ तो 9 बजे तो ट्रैवल भी करना होता है ना, ट्रैवल मत लो अभी। चलो इस बहाने थोड़ा जल्दी उठ जाना। चलो 7:30। ट्रैवल करने का ट्रैवल। सर नेक्स्ट लेक्चर ऑन वेडनेसडे। इतना कंजूसी क्या है, दो ना भी एक छुट्टी। आपकी बहन नहीं है, सब बहन के प्रति प्यार जगाओ। ठीक है चलो छुट्टी बस। सर मंडे एक ही छुट्टी। तो मान अभी थोड़ा बीमार हो, थोड़ा छुट्टी ले लो, अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ए वायडा, चलो मंडे छुट्टी, वेडनेसडे आना, ठीक है? सर वेडनेसडे को नहीं है, वो राम जन्मभूमि का। ए बावले, वेडनेसडे लेक्चर है अभी 7:30 बजे। चलो बाय। बाय। हैव एनी डाउट?